बोलिए। Yes, sir. Actually, I have a doubt related to the internal examination question, sir. I just open that question. Good afternoon, sir. Good afternoon. Yes. In which question you have a doubt? Question number 13, sir. Screen is shared to you. No, sir. The screen is not shared. Yes. सर क्लास में निकल के बात करते हैं। नहीं देख पाए हैं अभी, लगातार क्लास है। निकलते हैं तो इस क्लास के बाद निकल के देख लेते हैं। Yes. In which question you have doubt? Question number 13, sir. Actually, you have write that write an algorithm and create and display the single linked list. So we have to do all the things like a traversal and No. Only you have to write the function to create a single linked list. So initially, whenever you are creating single linked list, then you have to assign null value to the head pointer variable. Only you have to write the function only. At the moment, whenever you are creating the single linked list, what is the initialization process you have to do? The initialization process is you have to assign null value to the head pointer variable, because whenever you are assigning null value to the head pointer variable, that means the linked list is completely empty. Any list is empty. Initially it is empty, and now you are in the process to allocate any element over there. तो क्रिएशन के लिए बताना आपको और डिस्प्ले कराने के लिए, तो डिस्प्ले कराने के लिए आप सिंगल लिंक लिस्ट में हेड मूवमेंट कराते हैं, तो केवल दो ही फंक्शन यहाँ लिखना है आपको, क्रिएशन और डिस्प्ले। क्लियर? Yes, sir. Sir, in question number 12 and 13, sir. Sorry, 13 and 14. Algorithm as well as a function. We have to write only one. No. That's why I mention here or function. Yes, algorithm. Sir. If algorithm asks to you, you just write the function that is also the part of algorithm, because whenever you are writing algorithm, that is the part of algorithm. ठीक है ना? तो इसीलिए वहां पर कंफ्यूज नहीं करना के लिए वहां पर एल्गोरिथम और फंक्शन लिखा गया है। अगर एल्गोरिथम और फंक्शन है तो आप एल्गोरिथम अगर फंक्शन लिख रहे हैं तो दैट मीन्स you are writing algorithm, because without algorithm you are not in a position to write the function, because function is the step by step organization of the same algorithm. तो आप either algorithm लिखें स्टेप बाय स्टेप और या फंक्शन लिख दें, दोनों सेम है। ठीक है ना? एग्जाम में भी अगर एल्गोरिथम आता है आप फंक्शन लिख देते हैं तो गलत नहीं है, वो 100% ओके है। ठीक है ना? और जब आप फंक्शन लिख सकते हैं तो एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फंक्शन बिना एल्गोरिथम के आप लिख नहीं पाएंगे। तो फंक्शन हो गया कि आप इम्प्लीमेंटेशन भी दिखा दिए, और एल्गोरिथम तो केवल आपका वो कोड का पार्ट ऑफ द कोड हुआ, इंस्ट्रक्शंस केवल हुआ जिसको किसी भी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि इंस्ट्रक्शन जब फंक्शन लिखेंगे तो कोई ना कोई लैंग्वेज यूज करेंगे ही, क्योंकि उसमें इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट होगा। तो या तो C++, पाइथन, जावा कोई भी आप यूज करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। हाँ, तो आप फंक्शन लिख सकते हैं उस क्वेश्चन को लिखने के लिए। अदर क्वेश्चन Sir, in question number 16, sir. Hello, sir. हाँ बोलिए। In question number 16, Prim's algorithm. So we have to only write steps or give the with an example. No. If you mention the steps of the algorithm, that is okay. But if you explain the particular algorithm by any example, then in explanation that is also included. But here in this question, there is not. It is not mandatory to take any example. अगर कोई आपको अप्लाइड क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें अगर दिया जाएगा प्रिम्स एल्गोरिथम तो बनाएंगे। अपने से यहाँ पर आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। प्रिम्स एल्गोरिथम का स्टेप्स केवल बताना है।
Thank you, sir. Any other question? सेकंड क्या है? Yes. आप लोग में से किसी को कोई क्वेश्चन में पूछना है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 में पुश पॉप क्यों होगा? नहीं, यहाँ सिंगल लिंक लिस्ट है ना, स्टैक तो नहीं है यहाँ। यहाँ यही चीज ध्यान रखना, राइट एन एल्गोरिथम और फंक्शन टू क्रिएट एंड डिस्प्ले इन ए सिंगल लिंक लिस्ट, ठीक है ना। टू क्रिएट एंड डिस्प्ले इन, यहाँ लिख दिया इन, टू क्रिएट एंड डिस्प्ले सिंगल लिंक लिस्ट, ठीक है ना। सिंगल लिंक लिस्ट में को क्रिएट करने के लिए और उसमें जो डेटा है उसको डिस्प्ले कराने के लिए फंक्शन या एल्गोरिथम लिखना है। तो इसमें स्टैक कहाँ से आ गया? अब इसमें क्वेश्चन रहता है कि राइट एन एल्गोरिथम और फंक्शन टू क्रिएट एंड डिस्प्ले इन अ स्टैक यूजिंग सिंगल लिंक लिस्ट या यूजिंग लिस्ट, यूजिंग पॉइंटर। सिंगल लिंक लिस्ट यूज करते हैं, वहां पर स्टैक के बेसिस पर आंसर रहता है। यहाँ पर स्टैक कहीं है ही नहीं। एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 22 में इस एक्सप्रेशन का पोस्टफिक्स में स्टैक के थ्रू करना है, यानी कि यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनफिक्स इनटू पोस्टफिक्स यूजिंग स्टैक। तो हम लोग डिस्कस किए थे इसको, तो स्टैक का स्टेप्स इसमें दिखाना है, ठीक है। तो ये हाँ, यहाँ पर पुश पॉप ऑपरेशन है, सिंगल डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डीक्यू, आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डीक्यू, ठीक है। और तो कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं है? No, sir. No, sir. ओके। 19 question. Hello, sir. हाँ, 19. 19 में क्या डिस्कस डाउट है जी? व्हाट इज लिंक लिस्ट? लिंक लिस्ट क्या है बताना है, एक्सप्लेन इट्स टाइप इन डिटेल, ठीक है ना। तो इन डिटेल लिखा हुआ है तो आप इसलिए बोल दी कि इसको, तो इन डिटेल में आपको सिंगल लिंक लिस्ट, डब्ल्यू लिंक लिस्ट नहीं बताना है, सर्कुलर और ये सब नहीं बताना है, सिंगली और डब्ल्यू लिंक लिस्ट को बताना है, ठीक है ना। तो इन डिटेल में आप बहुत ज्यादा क्या बताएंगे? आप बताएंगे स्ट्रक्चर, नोड का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं सिंगल लिंक लिस्ट में, डब्ल्यू लिंक लिस्ट में, उसी को एक्सप्लेन कर देना है। आपको पूरा फंक्शन लिखना नहीं है इसमें, सारे ऑपरेशंस को दिखाना नहीं है इसमें, प्रोग्राम है नहीं इसमें लिखना। तो आप ज्यादा से ज्यादा इसका एक्सप्लेनेशन ये कर सकते हैं कि सिंगल लिंक लिस्ट में नोड का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको आप ज्यादा से ज्यादा स्ट्रक्चर का डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसमें जो स्ट्रक्चर का जो मेंबर है वो किस किस पर्पस के लिए यूज होता है, कौन डेटा एलोकेटर है, कौन आपका एड्रेस एलोकेटर है, ये आप नोटिफाई कर सकते हैं। सिंगल लिंक लिस्ट में कोई एडिशनल हेड पॉइंटर ले रहे हैं तो उसका पर्पस क्या है, जैसे हेड पॉइंटर ले रहे हैं तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेकिंग दैट एडिशनल पॉइंटर वेरिएबल, ये आप बता सकते हैं। डब्ल्यू लिंक लिस्ट में नोड का स्ट्रक्चर बताना है, नोड के स्ट्रक्चर का जो मेंबर है उसको एक्सप्लेन कर देना है। एडिशनल जो पॉइंटर ले रहे हैं, हेड और टेल जो भी पॉइंटर ले रहे हैं उसको बता देना है कि व्हाट इज द यूज ऑफ दैट हेड एंड टेल पॉइंटर। इट ओके? Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं है, वो तो क्वेश्चन के बेसिस पर आप आंसरिंग कर सकते हैं। ओके, 38 में तो डिस्कस किए हैं क्लास में। हाँ, स्टैक से बनाना है, स्टैक के थ्रू आप रिवर्स कर दीजिएगा, पैलिंड्रोम को चेक कर लीजिएगा। पैलिंड्रोम क्या है? स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग का पैलिंड्रोम क्या होता है? इफ द रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग इज द सिमिलर टू द ओरिजिनल स्ट्रिंग, और नंबर के केस में भी वही होता है। तो रिवर्स करने के लिए आपको स्टैक यूज कर लेना है, कैरेक्टर को पुश कराना है एक के बाद एक स्टैक में, और उसको पॉप से रिट्रीव करेंगे तो वो रिवर्स हो जाएगा, और जो रिवर्स होगा कैरेक्टर उसको किसी अलग स्ट्रिंग में रखेंगे और उस स्ट्रिंग को ओरिजिनल स्ट्रिंग से कंपेयर करा देंगे पैलिंड्रोम को चेक करने के लिए। तो अगर S1 आपका स्ट्रिंग है जिसमें आप स्टैक में रखे हैं डेटा एक के बाद एक, और S2 आपका डेटा है जो पॉप करा के आप रख रहे हैं, तो S2 और S1 अगर सेम है इसका मतलब पैलिंड्रोम है, सेम नहीं है तो पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे डेसिमल टू बाइनरी में चेक किए थे उसी तरह से यहाँ पैलिंड्रोम हो गया।
तो पैलिंड्रोम में स्टैक का क्या यूज होगा? स्टैक का यहाँ यूज रिवर्सल ऑफ द स्ट्रिंग के लिए। तो रिवर्सल ऑफ द स्ट्रिंग हम लोग डिस्कस किए हैं ना, नहीं किए हैं? एप्लीकेशन ऑफ स्टैक में डेसिमल टू बाइनरी, रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग, ये सब किए थे ना। यस सर। Yes, sir. वहां पर रिवर्सल ऑफ द स्ट्रिंग जो किए थे उसी में इसको पैलिंड्रोम को जोड़ देना है। वहां रिवर्स करके छोड़ दिए थे, प्रिंट करा दिए थे, उसमें एक कंडीशन डाल दीजिएगा। जहां रिवर्स हो रहा है उसको किसी स्ट्रिंग में स्टोर करके, और जहां रिवर्स हो रहा है उसमें ये कंडीशन चेक कर लेना होगा कि रिवर्स जो स्ट्रिंग हुआ वो ओरिजिनल स्ट्रिंग से सेम है या नहीं। या strcmp भी लगा सकते हैं वहां पर। हाँ, कंपेयर अगर 0 है इसका मतलब कि सेम स्ट्रिंग है। strcmp s1 s2 कर दीजिए। तो अगर बोथ स्ट्रिंग अगर strcmp s1 s2 इक्वल टू 0 है, तो इक्वल टू 0 कब होता है? स्ट्रिंग कंपैरिजन में इक्वल टू 0 तब होगा जब आस्की वैल्यू हर कैरेक्टर का सेम होगा। क्योंकि जब दोनों कंपेयर होगा तो दोनों को जो है आपका 65 - 65 0 हो जाएगा। तो हर कैरेक्टर का जो अगर सेम आस्की वैल्यू है तो फाइनल आउटकम आपका 0 होगा। तो स्ट्रिंग कंपेयर में जो है लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये 3 चीज चेक करते हैं ना strcmp फंक्शन में। मैं सी में किया होंगे। तो strcmp में पैरामीटर 2 होता है, फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग। तो फर्स्ट और सेकंड स्ट्रिंग को कर दीजिए, वहां पर देख दीजिए strcmp इक्वल s1 s2 अगर इक्वल टू 0 है तो पैलिंड्रोम होगा, अगर नहीं है तो नॉट पैलिंड्रोम। तो वहां कंडीशन एक हो जाएगा, इफ strcmp s1 s2 इक्वल टू 0, तो करेक्टिव आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? printf string is palindrome, otherwise else string is not palindrome। तो रिवर्सल ऑफ द स्ट्रिंग जो किया है उसी को आगे बढ़ा देना है, पैलिंड्रोम चेक कर लेना, हो जाएगा ना। 28 में राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज इन ए सिंगल लिंक लिस्ट। ये तो सिंपल लॉजिक आपको लगाना है, दैट स्टोर्स इंटीजर वैल्यूज, ठीक है ना। तो आपका जो एक लिंक लिस्ट है उसमें इंटीजर वैल्यू है, अब उसमें से मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है। तो मिनिमम निकालना है या मैक्सिमम निकालना है, दोनों ही के लिए यू हैव टू विजिट ईच एंड एवरी नोड, बिकॉज दैट नोड कंटेन्स द इंफॉर्मेशन एज एन एलिमेंट। तो एलिमेंट को कंपेयर करने के लिए एक के बाद एक, इसका इनिशियल, जैसे हम लोग एरे में क्या करते हैं, फर्स्ट लोकेशन के वैल्यू को हम एज्यूम कर लेते हैं मिनिमम या मैक्सिमम, उसके बाद मिनिमम या मैक्सिमम कॉन्टेक्स्ट स्विच करके उसको चेकआउट करेंगे जब उससे मिनिमम कोई वैल्यू मिल जाए। एरे में यही ना करते हैं, 5 वैल्यू अगर एरे में लेते हैं तो पहला वैल्यू को 0th प्लेस के वैल्यू को हम अगर मिनिमम को चेक करना है तो मिनिमम असाइन कर दिए, उसके बाद 1 प्लेस से लेकर n-1th प्लेस तक के वैल्यू को कंपेयर किए। जब जब कंपैरिजन में कोई स्मॉलेस्ट वैल्यू मिला, यानी मिनिमम से चेक कर रहे हैं, मिनिमम से अगर वो छोटा है तो मिनिमम चेकआउट होगा, अदरवाइज मिनिमम वही रह जाएगा A0। तो यहाँ पर भी आपका जो पहला नोड का जो वैल्यू है उसको असाइन कर देंगे मिन या मैक्स में। उसके बाद मिन के लिए आपको पता है कि मिन के लिए क्या चेक करते हैं, लेस देन। अगर लेस देन कोई, मिन से भी लेस देन कोई वैल्यू मिला तो मिन को चेकआउट करेंगे। मैक्स के लिए ग्रेटर देन चेक करेंगे, मैक्स के लिए ग्रेटर मिलेगा। तो ये तो आपको थोड़ा सा अप्लाइड करना है, इसको हम सॉल्व नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन समझ में आ गया। करना क्या है, लिस्ट आपका है, उस लिस्ट में से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का लॉजिक आपको पता है। क्लास से निकल के बात करते हैं। अब हो जाएगा ना, आपको कोई डाउट नहीं है? ये पहले खुद से करिए, मिनिमम मैक्सिमम, ये कोई बहुत टफ लॉजिक नहीं है इसका। मिनिमम मैक्सिमम सिंगल लिंक लिस्ट, ये भी बताया जा रहा है कि इंटीजर वैल्यू उसमें स्टोर हो रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको किसी भी तरह का ऑपरेशन करने के लिए लिस्ट बनाना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट a list. So first of all you create a list and then you have to check for minimum as well as maximum। आप एक ही साथ दोनों काम कर सकते हैं, कंडीशन चेंज करके कर सकते हैं। जैसे सिंपली हम इसको एरे के बेसिस पे बताते हैं।
कोई एक एरे है, इस एरे में सपोज करिए कि 5 2 1 11 12 ये वैल्यू है आपका एरे में, 5 वैल्यू है। अब इस एरे में अगर हमको मिनिमम निकालना है, मिनिमम चेक करना है, तो वी जस्ट चेक इंट आई, एक वैल्यू ले लिया मिन, एक ले लिया मैक्स, ठीक है ना। और क्या करते हैं बेसिकली, वी जस्ट असाइन min इज इक्वल टू A0 और यू कैन से ऑल्सो मैक्स एंड min दोनों को हम A0 से असाइन कर देते हैं। यानी A0 पोजीशन पर जो वैल्यू है उसको min और मैक्स दोनों बना दिए, ठीक है। एंड उसके बाद रेस्ट ऑफ द पर्टिकुलर बिट के लिए हम लोग क्या करते हैं, चेक फॉर I इक्वल टू 1 to I लेस देन 5 I plus plus, here we check if AI is greater than min max। अगर AI max से ज्यादा है तो max इज इक्वल टू AI। सिंपली यहाँ और चीज चेक करेंगे, इफ AI is less than min then min is also checked। Finally you will get a max and min। So outside of this ये फंक्शन विथ नो रिटर्न वैल्यू एंड रिटर्न टाइप पैरामीटर। तो यहाँ एक एरे ले लिए, इसमें इंक्लूड किए, इसमें आई मिन मैक्स वेरिएबल लिए, मैक्स और मिन को A0 यानी फर्स्ट लोकेशन का वैल्यू को एलोकेट कर दिए और फिर चेक किए। फाइनली यू हैव प्रिंटफ मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू परसेंटेज d that is printed through max minimum value that is allocated by min। Finally close it। तो सिंपली जैसे हम लोग एरे को लिए, इसी तरह से आपको लिंक लिस्ट लेना है। लिंक लिस्ट लेने के लिए फिर एक स्ट्रक्चर बनाना होगा, एक नोड का स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो आप चाहें तो कोई फंक्शन नहीं, सिंपली आप मेन लिखकर उसी के अंदर सब कुछ कर सकते हैं। स्ट्रक्चर को ग्लोबली डिक्लेयर कर दीजिए नोड का, और मेन में ही सब कुछ कर लीजिए। यहाँ पर पूरा प्रोग्राम में फंक्शन यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो मेन में अब उस स्ट्रक्चर का यूज मैलॉक फंक्शन के थ्रू आप स्ट्रक्चर नोड क्रिएट करेंगे। नोड क्रिएट करने के बाद एक लिस्ट उसमें एलोकेट करेंगे। तो जितना नंबर ऑफ डेटा आपको लेना है उतना बार आप लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो अब बस क्रिएशन करने के लिए फंक्शन को कॉल करते हैं, इसलिए एक ही काम को बार बार करने के लिए हर बार स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए एक फंक्शन, हाँ बोलिए सर। लिस्ट क्रिएट करना कंपलसरी है? तो if you have no list then how you can perform any operation? No sir, we can pre-assume that there already exists a list and we can yes you can assume also, yes sir। ठीक है ना। तो एज्यूम कर सकते हैं आप, जैसे यहाँ पर भी एरे में एज्यूम कर लिए, ठीक है। तो ये चीज आप तो एरे के बिना भी करते हैं, एरे के बिना भी 3 नंबर के बीच में भी निकालना है तो भी आप इस लॉजिक को लगा सकते हैं। एरे में बेनिफिट ये हो गया कि आपको नंबर ऑफ इफ या एल्स चेक नहीं करना पड़ा, एक ही इफ से काम हो गया, क्योंकि आपके पास एरे में इंडेक्सिंग है। तो इंडेक्स को आप लूप में यूज कर लिए और मैक्स और मीन दोनों के लिए एक स्टेटमेंट डाल दिया, उसके अकॉर्डिंगली मीन और मैक्स को चेकआउट कर लिए। क्योंकि जब भी आपका मिनिमम वैल्यू से कोई लेस मिनिमम कोई वैल्यू आया तो मीन चेक होगा, मैक्सिमम वैल्यू से कोई ज्यादा कोई वैल्यू आया तो मैक्स चेक होगा, अदरवाइज जो इनिशियल मीन और मैक्स है वही रह जाएगा। जैसे पहला केस में 5 है तो 5 को आप मीन और मैक्स दोनों बनाए हुए हैं। तो AI आपका 1 से शुरू किया, 1 में क्या है 2 है, तो 2 को चेक किया कि 2 इज ग्रेटर देन मैक्स, नो 2 इज ग्रेटर देन मैक्स नहीं है। तो ग्रेटर देन मैक्स होगा तो मैक्स चेक होगा, मैक्स चेक नहीं हुआ, मैक्स अभी भी क्या है 5 ही रह गया। और मीन को चेक कीजिए, मीन क्या है आपका 2 और मीन में आपने 5 रखा है, अब यहाँ मीन चेक हो जाएगा क्योंकि मिनिमम में और मैक्सिमम दोनों में 5 था। आप जब मैक्स को चेक किए तो मैक्स आपका 2 जो है वो एग्जिस्टिंग मैक्स से कम है,
तो वो चेकआउट नहीं होगा, लेकिन मीन जो है एग्जिस्टिंग मीन से कम है, क्योंकि एग्जिस्टिंग मीन 5 है और अभी 2 आ गया, तो 2 आपका चेक होगा, तो अब नया मीन 2 हो गया, पहला पास में नया मीन 2 हो गया, मैक्स आपका 5 ही है। दूसरे बार में 1 को चेक किया, तो फिर अगेन 1 जो है ग्रेटर देन मैक्स नहीं, तो मैक्स अभी भी 5 ही बना रहा है। मीन फिर चेक हुआ तो 1 इज लेस देन मीन, यस, क्योंकि मीन आपका 2 है और ये अभी नया जो वैल्यू है 1 2 से कम है, तो दूसरे बार में भी मैक्स 5 ही रहा, दूसरे पास में मीन आपका 1 हो गया। तीसरे पास में 11 है, तो 11 है तो 11 चेक हुआ मैक्स से, मैक्स 5 है, तो यस 11 इज ग्रेटर देन मैक्स, तो मैक्स विल बी चेक, तो मैक्स चेक हुआ तो मैक्स अब नया मैक्स हो गया 11, और मीन चेक हुआ 11 इज लेस देन मीन, नो, तो मीन इज ऑलरेडी 1, जो 1 था वहीं रह गया तीसरे पास में। चौथा पास में आपका 12 आया, 12 जो है वो मैक्स से चेक हुआ, 12 इज ग्रेटर देन मैक्स, मैक्स में 11 है, यस, तो हम अगेन मैक्स चेक हुआ, मैक्स अब 12 हो गया। मीन चेक हुआ 12 इज लेस देन मीन, मीन 1 है और ये 12 है, तो ये नो, तो मीन में 1 रह गया, मैक्स में 12 आ गया, तो रिजल्टेंट आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या प्रिंट किया 12 और मिनिमम वैल्यू 1 प्रिंट कर देगा। तो दैट इज अ पर्टिकुलर कंडीशन विच यू कैन यूज इन केस ऑफ लिंक लिस्ट ऑल्सो, लिंक लिस्ट में आपको कंपेयर करना है। तो दैट इज द क्लू, because I am not going to solve that question, you just try to solve that question, ठीक है ना, so this is hint for you to solve that question. Any other question? और कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक, now note one question. लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे सेपरेट चैनिंग, लीनियर प्रोबिंग एंड डबल क्वाड्रेटिक प्रोबिंग और डबल हैशिंग आज डिस्कस करना है। तो इन क्वाड्रेटिक प्रोबिंग सम कांस्टेंट वैल्यू इज गिवन टू यू, in which you have to use that constant value. So we just take one problem, first of all, for chained hash table. Actually chained hash table, that is the opened, हाँ, तो सेपरेट चेनिंग जो आप करते हैं, तो सेपरेट चेनिंग में मार दो। ये मारो मारो पे ये बात गलत है। मार धार सब शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, let us consider the insertion elements 5, 28, 19, 15, 20, 33, 12, 17 and 10 into a chained hash table suppose that hash table has 9 index slots, 9 slots, and the hash function be hk is equal to k mod 9, ठीक है ना। Now just allocate this one using separate chaining. Use separate chaining technique to avoid collision. तो सेपरेट चेनिंग में इनिशियली इसको
जब आप सॉल्व करेंगे तो यू हैव अनऑक्युपाइड 9 ब्लॉक्स 1 2 4 5 6 7 8 9। तो ये आपका अनऑक्युपाइड ब्लॉक है 9। Initially there is no any element over there, so this one is your नाउ। यहाँ पर जब हम लोग लास्ट क्लास जो डिस्कस किए थे वो मैनुअल प्रोसेस था। नाउ वी डिस्कस इट एज ए प्रोग्रामिंग। तो इनिशियली ऑल आर असाइंड नल, यानी कि जितना भी आपका हैश टेबल में जो पोजीशन है ऑल स्लॉट्स आर असाइंड नल वैल्यू। तो वंस यू एलोकेट द पर्टिकुलर, ये ऑल आर होल्डिंग द एड्रेस। तो अगर आपका एड्रेस होल्ड कर रहा है तो अगर हम लोग इन लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंट करेंगे तो वी जस्ट असाइन नल वैल्यू टू ईच स्लॉट्स। तो 0 से लेकर 8 तक का स्लॉट है, इसमें सब आपका जो है अभी कोई भी डेटा यहाँ एलोकेट नहीं है। सेपरेट चेनिंग में एक्चुअली क्या करते हैं कि आपका जो इंडेक्स डुप्लीकेट इंडेक्स जनरेट हुआ, तो जैसे ही डुप्लीकेट इंडेक्स जनरेट हुआ है तो आपका जो है वो एड्रेस एलोकेट होता है। तो जब हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसी पर्टिकुलर एड्रेस के लोकेशन में लिंक लिस्ट एक क्रिएट हो जाएगा। तो आपका जो सेक्शन है वो एड्रेस होल्ड करेगा उस पर्टिकुलर डेटा का। तो डायरेक्टली हम डेटा को नहीं रखकर उसका एड्रेस रखेंगे और फर्दर जो नोड है वो उससे क्रिएट होगा। तो इसके लिए पहले क्रिएट करिए, तो लिखिए 5 के लिए क्या होगा। 5 के लिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। वहां पर ये आपका इनिशियल स्टेट होगा, दिस इज द इनिशियल स्टेट ऑफ चेन्ड हैश टेबल। ठीक है ना, इनिशियल स्टेट है। स्टेट विल बी चेंज आफ्टर ईच पास, हर पास के बाद स्टेट आपका चेंज होगा। तो H5 आपका है, यानी कि यहाँ पर जो की है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन HK इज इक्वल टू K mod 9। तो यहाँ पर अब की वैल्यू आपका क्या है 5 28 19 15 20 33 12 17 और 10। ये सारा की वैल्यू है जिस पर इसको अप्लाई करना है इंडेक्स जनरेट करने के लिए। तो दिस इज द हैश फंक्शन विच इज अप्लाइड ऑन ईच एवरी एंड एवरी की। तो हर की पर ये अप्लाई करना है। तो सबसे पहले k इक्वल टू 5 के लिए HK that is H5 is equal to 5 mod 9, that is what 5। तो सिंस H5 आपका क्रिएट हो, लिंक लिस्ट आपका जो क्रिएट होगा तो उसमें इंडेक्स इसका कहाँ पर होगा। तो T आपका है मान लेते हैं, तो T में इसका कहाँ होगा T5, यानी T5 is the location where you store the particular value 5। तो T5 is used to allocate the key value, the value 5। So after allocation, what is the index position? You just maintain that state. So state will be changed। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 5 एलोकेट होगा। तो अब एक्चुअली हम लोग जब इसको एलोकेट करेंगे तो ये पहले से यहाँ क्या है, पहले से नल है। तो we just assign the address of this newly created by the help of this node। तो 5 is inserted here, ठीक है ना, and the particular value is allocated here। तो 5 आपका एलोकेट हो गया। फर्दर सेकंड आपका जो है की वैल्यू क्या है, k इक्वल टू
k इक्वल टू 28, तो एच के इज इक्वल टू 28 mod 9 दैट इज 1, ठीक है ना। तो सिमिलरली यू जस्ट अकम्प्लिश ऑल, सबको कंप्लीट करिए। तो फाइनल स्टेटस हमको दिखाइएगा, ऑनलाइन में भी जिससे बोलेंगे दिखाइएगा, ऑफलाइन में आप बनाइए, देख लेते हैं। एक ही हैश टेबल को अपडेट कर दीजिए आप, अगर मिटा सकते हैं तो, नहीं तो ब्लैंक रखिए, क्रॉस मत करिए, ब्लैंक रखिए। एग्जामिनेशन में आता है तो आपको सेपरेट ही दिखाना पड़ेगा, हर की वैल्यू के लिए सेपरेट स्टेटस दिखाना पड़ेगा, यानी की वैल्यू इंक्लूजन के पहले क्या था, बाद में क्या हुआ। इसके लिए फिर T1 स्लॉट यूज होगा 28 के लिए। ठीक, अब इसमें यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो आपका क्रिएशन हो रहा है प्रोग्रामेटिकली आप जब करेंगे तो हर बार आपका जो है ये आगे बढ़ते जाएगा। जैसे हम लोग डिस्कस किए थे मैनुअली में क्या था, तो मैनुअली में प्रोसेस में हम लोग दिखा दिए कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, सब इसी सीक्वेंस में आएगा। लेकिन जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो आप तो इस की वैल्यू पर ही, इस पर्टिकुलर नोड पर ही काम करेंगे। तो आपका जो नोड एग्जिस्टिंग है, जैसे 5 हमने बनाया, अगर उसी इंडेक्स 5 पर कोई एक और नोड आएगा तो वो नोड 5 के बाद जुड़ेगा या 5 के पहले? एनीवन? हाँ, तो ये 5 के पहले आपका जुड़ेगा, तो 5 के पहले जुड़ेगा तो आपका जो लास्ट नोड हमेशा नल रहेगा। तो ये एग्जिस्टिंग नोड है, इसका एड्रेस आपको कहाँ एलोकेट करना होगा, उसके नेक्स्ट में है। अब वो डिपेंड करता है कि आप ये जो इम्प्लीमेंटेशन किस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को यूज करके कर रहे हैं, ठीक है ना, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं। तो जैसे लिंक लिस्ट आप यूज कर रहे हैं, लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन आप किसके लिए कर रहे हैं, स्लॉट आपका तो फिक्स है ना, तो स्लॉट जो फिक्स है उसमें रैंडमली एलोकेट कर रहे हैं। अब इस स्लॉट में जो आपका एलोकेशन हो रहा है वो स्टैक मैनर में हो रहा है और उसका इम्प्लीमेंटेशन लिंक लिस्ट के थ्रू कर रहे हैं। तो यहाँ जो 5 आप एलोकेट किए, तो 5 के का एड्रेस तो आपके पास है, आप जो न्यू नोड लाए हैं उसको इसमें ही एडजस्ट करना है। तो जो एग्जिस्टिंग एड्रेस है उसको हम कहाँ पे असाइन करेंगे, न्यूली क्रिएटेड जो नोड है उसके नेक्स्ट में। पहली बार जब आपका नोड क्रिएट होगा तो उसके नेक्स्ट में नल होगा क्योंकि फर्दर यहाँ कोई नोड नहीं है। लेकिन जब दूसरी बार इसमें कोई डेटा आएगा तो उसके नेक्स्ट को आपको सोचना है, क्योंकि हर बार नोड तो क्रिएट होगा सिंगल लिंक लिस्ट में, तो नोड जो क्रिएट होगा उसके नेक्स्ट में आपको इसको लिंकअप करना है, क्योंकि इसको तो जोड़ते जाना है। तो 5 के बाद मान लेते हैं कि 12 आया, तो कहाँ पर अटैच होगा, यहाँ पर जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो प्रोग्रामेटिकली अगर आपको यूज करना होगा तो यू कैन यूज द एग्जिस्टिंग एड्रेस टू एलोकेट द एड्रेस फॉर द नेक्स्ट पॉइंट और फील्ड ऑफ द न्यूली क्रिएटेड नोड। तो न्यूली क्रिएटेड नोड के नेक्स्ट में आपको एड्रेस ऑफ 5 रखना होगा, तो ये जितना भी नोड है इसके पहले जुड़ता चला जाएगा, ठीक है ना, और एक के बाद एक आप उसको जब एक्सेस करेंगे तो उसी हिसाब से वो एक्सेसिबल होगा। तो 28 आपका T1 पर आपका ऐड हो रहा है, 21 के बाद 28, 18 भी है, तो 28 के पहले 18 होगा,
वो आप पॉइंटर दिखाइएगा। तो यहाँ पर इसके लिए आपका जो है, हम यहाँ पर मिटा कर लिख देते हैं इसी में। 28 के लिए आपका यहाँ 28 क्रिएट हुआ। इसके बाद 28 के बाद की वैल्यू क्या है? 19। तो एच के इज इक्वल टू 19। एच के लिखना ठीक नहीं होगा, एच 28 लिखना सही होगा। एच 28 एच 19। तो 19 मॉड 9, तो ये अगेन 1 हो गया। तो ये 1 हो गया। तो इस केस में देखिए, यहाँ ये न्यूली क्रिएटेड नोड है आपका 19, और पहले से जो नोड एग्जिस्ट कर रहा है उसका एड्रेस इसके नेक्स्ट में आएगा। 28 यहाँ पर जैसे था वैसे ही होगा। 19 के बाद फिर एक नोड आएगा, तो उसके नोड का तो वैल्यू इन्फो आप इनपुट लेंगे, उसके नेक्स्ट के बारे में सोचना है कि उसको अटैच कहाँ करना है। तो उसको अटैच आपको इसी पर्टिकुलर वैल्यू से करना है। तो उसके नेक्स्ट में एग्जिस्टिंग नोड का एड्रेस असाइन करते जाएंगे। क्या रहा है किसका? के इक्वल टू, इसके बाद क्या है 19 के बाद? 19 के बाद 15 है, ठीक है। तो एच 15 इज इक्वल टू 15 मॉड 9, तो 6 होगा ना। नहीं, अच्छा टोटल निकालिए। तो 15 मॉड 9, या आप बाकी सबका सेपरेट आ रहा है? अच्छा ठीक। यानी कि यहाँ पर T1 यूज हुआ, यहाँ पर भी एक T1 यूज हुआ, इस केस में T6 यूज हुआ। तो T6 में यहाँ 15। इसके बाद K इक्वल टू है 1, कितना है 20 है। तो H20 11 हो जाएगा। 2 9 दूनी 18, हाँ। तो T2, तो ये भी 20, and K इक्वल टू 33। 9 चौक 36, 9 3 17, 6। तो 6 में पहले से 15 है, तो 6 में गया आपका 33, और यहाँ से 15, और देन K इक्वल टू 12। H12 इक्वल टू 12 मॉड 9 T3। तो T3 12, then K equal to 17। ये कितना हो जाएगा? हाँ, तो 8 में तो डायरेक्ट होगा 17। और कोई रिपीट हो रहा है क्या? K इक्वल टू 10 मॉड 9। हाँ, और यही ड्रॉबैक है इसका 1928। हम्म, 10 है, उसके बाद 19 था। अब इसमें देखिए कुछ ब्लॉक आपका अनयूज्ड भी रहा, फिर भी आपका ये लिंक लिस्ट जो है आउटसाइड टेबल क्रिएट हुआ। तो ये इसका डिमेरिट है सेपरेट चेनिंग का। हाँ बोलिए।
हैं? ये जिस सीक्वेंस से आया उसी सीक्वेंस से एलोकेट करते चलेगा। जैसे आपका जो सिस्टम में पहले 28 आया तो 28 का एड्रेस आपका वो होल्ड किया, ठीक है ना, और 28 का एड्रेस होल्ड करने के बाद फिर आपका 19 आ गया, तो 19 आ गया तो 19 तो नया नोड, आप जब भी नोड बनाते होंगे तो एक नोड बनाए, इसमें की वैल्यू ये कि इसका नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड को आपको देखना है कि इस नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड कहाँ अटैच होगा। तो ये नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड के लिए आपके पास ऑलरेडी 28 का एड्रेस है, 28 का एड्रेस यहाँ पे एलोकेट है, तो यहाँ जो एलोकेट है इसका एड्रेस इसके नेक्स्ट में डालकर और इसका एड्रेस यहाँ पर एलोकेट कर देंगे। तो हर बार जो न्यूली क्रिएटेड नोड है ना उसका एड्रेस ये होल्ड करेगा। हाँ, कहाँ चेंज करना होगा? यहाँ नहीं एलोकेट हुआ कोई। 6 में तो 3315 है ही। हाँ ठीक, ठीक है। इसको एक क्लास और होगा आपका ना अभी एग्जाम के पहले, उसमें